me. So students, today in maths class, we will do the sums of division and some activities related to division. Already I have done, and you also have done this work. So my first slide for the activity is this. Now, can you tell me how many apples are there? First of all, tell me how many apples are there. Now you have to divide 8 apples. Very good. 8 apples are there. Now you have to divide these apples in 2 baskets. Okay? 8 apples हैं. आपने 2 baskets में इनको divide करना है. How you will do? Pratiksha. Beta, your videos should be on. This is not the way. मैम 4 वीडियो 4 एप्पल्स जो हैं हम वो दोनों बास्केट्स में डिवाइड कर देंगे. तो हमने बेटा जब इसको डिवाइड किया 8 एप्पल्स को किसके साथ डिवाइड किया आपने? तो इसका डिवीजन फैक्ट आप लिख सकते हो इसमें चैट बॉक्स में. जो डिवीजन फैक्ट है वो कैसे आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड. सोनिया, जिनिशा ने आंसर दिया है. दैट इज द वेरी राइट आंसर. 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2. तो आपका जो आंसर आएगा दिस वे यू विल राइट. 8 एप्पल से हमने 2 बास्केट में डिवाइड करने थे. तो हर बास्केट में कितने एप्पल्स आए? 4 एप्पल्स. राइट. नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ काउंट द चिप्स. How many chips are there? Please write the answer in the chat box. First of all, count the total number of chips. Very good. Right answer 12. We have 12 chips and we have to distribute these 12 chips in 4 packets. कितने पैकेट्स में हमने डिवाइड करने हैं? 4 में. तो कितने कितने एप्पल आए, कितने कितने चिप्स आएंगे ईच पैकेट में? पहले 1-1 करके डालो, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको. 1-1 चिप्स डाला, फिर सेकंड वाला चिप्स डाला, फिर थर्ड वाला चिप्स डाला. तो उसके बाद कोई यहाँ पे लेफ्ट बचा. हमने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. वेरी गुड. अनन्या का राइट आंसर है. सहजप्रीत का राइट आंसर है. आरव का राइट आंसर है. एंड प्लीज राइट द डिवीजन फैक्ट. इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3. वेरी गुड. बेटा स्टॉप स्क्रिबलिंग. So the right answer is 12 को जब हमने 4 में डिवाइड किया 4 पैकेट्स में, तो हर पैकेट में कितने एप्पल और कितने चिप्स आएंगे? 3 चिप्स. राइट. Pavika, is it clear? Palak, is it clear to you? Show me your thumb if it is clear to you. Show me your thumb like this. Yes. Okay, very good. जिसको क्लियर है, show me your thumbs. Ishika, you are talking to your mother. Ishika Bhardwaj. Very good. I can see your thumbs. Very good. It means it is clear to you. Now we will move to the next question. Now count the number of biscuits, cookies. कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Again 12 cookies are there. तो अब आपने 3 ट्रेज में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो भी इक्वली.
12 कुकीज को हमने 3 ट्रेज में डालना है, तो हर ट्रे में कितनी कितनी कुकीज आएंगी? यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. गुरशीन का आंसर she has given. Arav Singh has given. Param Basra has given. Now write the division fact. I think you have counted now. Write the division fact. Very good. 12 divided by 3. टोटल चीज को जितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके साथ हम उस नंबर को लिख देंगे और आफ्टर दैट वी विल काउंट द नंबर ऑफ कुकीज इन ईच ट्रे. सॉरी बेटे यहाँ पे 4 आ गया. Will be 3. उधर नहीं करता ना बैग उधर न हो जा उधर न हो जा पूरे 3. Okay, children. Now the next question is on the screen. 3 questions मैंने लिखे हैं यहाँ पे. हम इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे, right? If you want to see, you can have look on the board. I'm going to solve these questions on the board now. So the first question I'm going to take here, that is 93 divided by 7. Now please students, is it clear to you? Please write in the chat box. Is the board clear to you? Daya ma'am, is it clear? Yes, ma'am. Okay beta, okay. तो अब हम बताएंगे. Yes, ma'am. Mokshdeep. Yes, ma'am. Mokshdeep, unmute yourself and tell Yes, me ma'am. what is dividend here. इसमें dividend क्या है? 93, ma'am. Very good. So we will write dividend at the place of dividend. We will denote it with capital D. हमने इसको capital D से लिखा. After that, Muskan, tell me what is divisor here. First question में divisor क्या है? Muskan. तो डिविडेंड डिवाइजर वो इन दोनों में से divisor क्या है? स्मॉल कैपिटल डी से लिखते हैं. 93 को हमने यहाँ पे लिख दिया, that is dividend. So what is divisor here now? मुस्कान, unmute yourself. आपने unmute नहीं किया अभी तक बेटा. मुस्कान, are you listening? What is divisor? इन दोनों में से divisor क्या है बेटे? डिवाइजर कौन सा है दोनों में से? हाँ, अब 9 के जब 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 के नीचे क्या लिखेंगे? Listen first. First of all, tell me. आप मम्मा को नहीं बताओगे, मुझे बताओ ना. दोनों में से divisor क्या है? मैंने तो अभी लिखा ही नहीं. Ananya, you just tell what is the divisor here. Ananya. Ananya, what is divisor here? Gurveer Singh, what is divisor here? 7 and Yes. 7 is a
डिवाइजर, तो इसको हमने लिखा स्मॉल डी के साथ। अब मुझे बताइए, प्रतीक्षा विल टेल मी, प्रतीक्षा हम पहले Yes, ma'am. किसके अंडर कौन सा टेबल रीड करेंगे और किसके अंडर रीड करेंगे? हमने कौन सा टेबल रीड करना है और किस डिजिट? 7. वेरी गुड। 7 का टेबल किसके अंडर रीड करना है? 7 का टेबल लर्न करना है। और किसके अंडर रीड करना है? हमारा 7. नहीं, हमने इन दोनों में से कौन से डिजिट के नीचे बोलना है 7 का टेबल? 9 के नीचे। सहजप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हमने 93 के नीचे क्यों नहीं बोला टेबल, ये वाला 7 का टेबल 9 के नीचे क्यों बोलने को बोल रही हूँ मैं? 9 के नीचे। अभी मुझे बच्चों ने बोला है 9 क्योंकि 93 जो है वो 2 डिजिट नंबर है और जो 7 है वो सिंगल डिजिट नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 7 डिजिट नंबर। ओके, फर्स्ट 1 डिजिट नंबर लेंगे तो हम 7 का टेबल पहले बोलेंगे 9 के अंडर। 7 zeros are 0, 7 ones are 7, 7 twos are 14. Okay, 14. can we write 14 here? क्या हम यहाँ पे 14 लिख सकते हैं 9 के नीचे? No, ma'am. तो हम क्या लिखेंगे? The billion. हमने इसको क्या कट कर देना ना? 7. 7, वेरी गुड। 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 7 के टेबल में 7 कब आया? 7 आया 7 में। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आदित्य? 7 उधर क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर? अब क्या करेंगे इसके बाद 1 लिखने के बाद? उसके बाद हम इसके नीचे लाइन डालते, एक एरो डालते। नो अभी वो स्टेप नहीं आया आपका। इन दोनों को सेपरेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हरलीन, अनम्यूट योरसेल्फ। हरलीन, इससे जो लाइन डाली बेटा म्यूट योरसेल्फ। आरव म्यूट योरसेल्फ। हरलीन अनम्यूट करो बेटे। अब हम इसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप हरलीन, what we will do here? Subtract, very good. अब हम 7 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आया 2। अब हम ये वाला डिजिट एरो डाल के नीचे लेके आएंगे। प्रेमवदा, अब हम 7 का टेबल किसके अंडर रीड करेंगे? प्रेमवदा। यस मैम। अब हम 7 का टेबल किसके अंडर रीड करेंगे? 7 के टेबल में 23 कहाँ पे आते हैं? यस, 23 आता है कि नहीं आता वो चेक करेंगे। तो वी विल अगेन स्पीक द टेबल ऑफ 7। 7 zeros are 0, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28। अब 7 28 जो 23 से बिग हो गया तो 23 तो हमें मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? उससे छोटा डिजिट ढूंढेंगे। यस, इसको हम कट कर देंगे और इससे छोटा क्या है इसके टेबल में? इसके एग्जैक्टली ऊपर 21। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 21। और 7 के टेबल में 21 कब आया? नमिश विल टेल कि 7 के टेबल में 21 कब आया? मैम 7 3 21। 7 3 20। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 3, क्योंकि 7 के टेबल में 21 3 पे आया तो वी विल राइट दिस 3 हियर। तो ये हमारा बन गया क्वोशंट।
अब हम नेक्स्ट स्टेप में सुखमन गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? यहाँ पे क्या मैम? यस आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा स्क्रीन नहीं है मेरी, मैंने बोर्ड पे करवा रही हूँ, स्क्रीन तो मैंने दिखाई नहीं। ओके। स्क्रीन नहीं है, बोर्ड है। मुझे ये बताइए कि अब हम बोर्ड पे 23 करवा रहे हैं और मैम। 21 लिख दिया। नाउ व्हाट वी विल डू? अब हम क्या करेंगे गुरशीन? व्हाट वी विल डू? मैम सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट। 3 में से 1 गए 2 और 2 में से 2 गए 0। तो दिस इज योर रिमेंडर। तो अब हमारा आंसर बना 13 हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर है दैट इज 2। रिमाइंडर इज 2। अच्छे से लिखते हैं। तो वी हैव सॉल्व्ड आवर सम। इज इट क्लियर बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक। मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया था 85 डिवाइडेड बाय 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बेटा जल्दी से आपने अनम्यूट करना है, ओनली देन वी विल बी एबल टू फिनिश इट। ओके 85 डिवाइडेड बाय 4। तो अगेन जिसका मैं नेम बोलूंगी जल्दी से अनम्यूट करेगा वो स्टूडेंट, एंड दैट स्टूडेंट विल गिव द आंसर। विधान, व्हाट इज डिविडेंड हियर? विधान के बाद 85 डिविडेंड है। मैम प्लीज डोंट टेल। डिविडेंड 4 है डिवाइडेड। विधान बेटा गिव आंसर यू। So 85 is the dividend and 4 is the divisor. Parents are requested, please don't help, just let them give the answers. Okay, next students, Vaibhav, unmute yourself. Vaibhav, beta which table we will read here now? कौन सा टेबल रीड करेंगे अब हम? 4 का। 4 का टेबल किसके अंडर? 85। 85 के अंदर? 8 के अंदर। पहले हम सिंगल डिजिट नंबर लेंगे। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो हम पहले चेक करेंगे 4 zeros दा 0, 4 ones दा 4, 4 twos दा 8। अब हमें 4 के टेबल में 8 मिल गया। 8 is there, so we will write 8 here. Yes. और 4 के टेबल में कब आया 8? 2 पे। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 8 गए 0 और यहाँ पे आ गया नीचे 5। Now we will read again the table of 4 under 5. तो हमने इतना तो लिखा ही हुआ है ना। 4 zeros are 0, 4 ones are 4, 4 twos are 8। 5 के नीचे हम 8 नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे अब हम? धैर्य। 5 के नीचे हम 8 तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैम 1 4। 4। हम ये वाला 4 लिखेंगे, इसको कट कर देंगे। 4 ones are 4 और 4 के टेबल में 4 कब आया? 1 पे, तो वो जाएगा हमारा क्वोशंट में। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 गए 1। आंसर क्वोशंट इज इक्वल टू 21 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। So this way we have solved our sum. Right बच्चे? बेटा प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स जिसको अभी तक समझ नहीं लगा। नेक्स्ट टर्न कृषभ,
नेक्स्ट टर्न कृषव की है. थर्ड सम आई एम गोइंग टू टेक हियर नाउ. 74 डिवाइडेड बाय 6. तो आगे से देख रहा हूँ. 74 divided divided by 6. Krisha, what we will write inside this format? यहाँ पे क्या आएगा बेटे? Krisha, unmute yourself. बेटे, don't take much time. जल्दी से unmute करो. You are writing in the chat box that you want to speak. Krisha, what we will write here? Are you there, beta? 6. हम यहाँ पे 6 लिखेंगे अंदर. डिविडेंड. डिविडेंड हमेशा बेटे डिवाइड के साइन के आगे वाला 74. 74. मैंने आपको बताया है कि ये जो साइन है डिवीजन का, इसके पहले जो नंबर है वो अंदर लिखेंगे और जो बाद वाला नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो दिस इज अवर डिवाइजर, दिस इज अवर डिविडेंड. राइट कशिश? अब हम 6 का टेबल किसके अंडर रीड करेंगे? 6 का मैम टेबल 7 के अंदर. वेरी गुड. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 zeros are 0. पहले टेबल लिख लें. Speak up in your mind. 6 zeros are 0, 6 ones are 6, and 6 twos are 12. अब हम क्या करेंगे? 12 लिखेंगे यहाँ पे. Can we No, write ma'am. 12 under 7? No, because 7 is small and 12 is big. So we will cut this and we will use 6 here. तो 6 के टेबल में 6 कब आया? 1 पे. ये वाला 1, ये वाला 6 के टेबल में जब 6 आता है तो ये वाला 1 यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन की प्लेस में. एशिका, इसके बाद हमने 6 का टेबल किसके अंडर रीड करना है? अनम्यूट योरसेल्फ एशिका. 6 का टेबल किसके अंडर रीड करना है हमने अब? एशिका बेटे अनम्यूट योरसेल्फ. हरलीन अनम्यूट योरसेल्फ. हरलीन. मैम. यस मैम. यस, किसके अंडर रीड करेंगे 6 का टेबल? अब 6 के टेबल में क्या ढूंढना है हमें? मैंने पहले 6 के टेबल में हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज दिस? 14. 6 के टेबल में हम चेक करेंगे कि 14 आता है कि नहीं. तो हम यहाँ पे टेबल फिर से लिखती हूँ मैं. 6 ones are 6, 6 twos are 12 and 6 threes are 18. जब बिग नंबर आ जाए तो हम टेबल लिखना बंद कर देते हैं. इससे बिग नंबर आ गया ना 18. तो we will cut it. Now what we will write here? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 के टेबल में मैम 18. 18 तो लिख ही नहीं सकते बेटा, वो तो मैंने कट कर दिया. Yes, Harleen, tell me. मैम 12. 12. This 12 we will write it here. और 6 के टेबल में 12 कब आया? 2 पे. तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4 में से 2 गए 2, 0, and this is our remainder. This is our. So the quotient is 12 and remainder is 2. So this way we have to solve our sums. Now I think all of you will come do the sums by your own. Okay, so I have shared one worksheet with you. आज worksheet 5 मैंने send की है ना, तो that worksheet you people will do by your own. Okay, you people will try
कि आप मम्मा की हेल्प नहीं लो आज, देन यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी कि मैम मेरे को ये समझ में नहीं आया, then I will explain you again. Okay, जिसको प्रॉब्लम आएगी, those students can see the videos also. I have shared 3 videos with you. मैंने सिंगल डिजिट की अलग से शेयर की थी, डबल डिजिट की अलग, फिर कंबाइन दोनों की कल मैंने जो आज शेयर की है, तो you people can see those videos to make it understand. Okay.